recording. So one by one हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ेंगे कि हाउ रिजेनरेशन इज हैपनिंग इन ऑल these representative animals, or you can say these are the best studied ones. These are the model systems for studying the degeneration in animals. Okay. So one by one, so invertebrate देख लेंगे. These two are invertebrates. A and B are invertebrates. C, D, E, and F are vertebrates. Invertebrates, these are the planarians. They are tiny flatworms, and they have the ability to regrow the entire organism. If you cut this, दिख रहा है पिक्चर बच्चों? Sir, yes, sir. If you cut the body of planaria anywhere, okay, हेड को अगर कट करके अलग कर दिया, ट्रंक रीजन को अलग कर दिए, टेल रीजन को अलग कर दिए, हेड रीजन will, this part will regenerate the remaining portion of the body. If the middle portion is excised out, the middle portion will develop towards its anterior side head region, posterior side abdominal region. If the abdominal portion is left, then entire trunk region and head will be regenerated, and you will get the complete organism in this planaria. They have the maximum regenerating power. Okay, so the entire organism can regrow, and this capacity depends on the abundant reserve of adult stem cells throughout their body. And these adult stem cells are called as, in this planaria, इस पर काफी रिसर्च हो रहा है, they are called neoblasts. Neoblasts, many types of neoblasts are there. इसमें भी, but essentially they are neoblasts are, क्या बताया अभी हम? They are adult stem cells, because this planaria is in the adult stage of its life cycle. Stem cells are adult, कोई embryonic नहीं है, adult stem cells. Okay, these are undifferentiated cell. Okay, सरप्राइज की बात यह है कि प्लानेरिया के बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, उसमें से 25 से 30% सेल, 1/4 सेल इसके सारे नियोब्लास्ट हैं. That's why this animal has tremendous regenerating capacity. आपको बताया था मैंने, रीजनरेशन के लिए 3 mechanisms are responsible. तीनों या तो स्टेम सेल्स या प्रोजेनाइटर सेल्स से डिफरेंशिएटेड सेल बन जाएंगे, वो सेल का जो नीड है वो फुलफिल होगा, या डी डिफरेंशिएशन होगा, या ये 1 और 2 दोनों होंगे, या 1 अकेला भी हो सकता है. ओके, या कभी कभी ट्रांस डिफरेंशिएशन भी होता है. प्लानेरिया के केस में आप क्या देख रहे हैं? मैकेनिज्म नंबर 1 इज रेस्पॉन्सिबल. आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? Yes, sir. कैसे होता है? क्योंकि इंजुरी होने के बाद जो रेस्पॉन्स आया हुआ जनरेट हुआ यहाँ in response to injury, neoblasts present at this site starts accumulating. Suppose cut हो गया, then the neoblasts, I'm focusing on this region, this part, neoblasts from here, they will start accumulating this injured area. And these neoblasts are adult stem cells.
समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay. These neoblast cells accumulate to form a regeneration zone here, and this regeneration area, this entire injured area, in this area there is a formation of blastema. This aggregation of neoblast cells in this area is called as blastema. Okay. ब्लास्टेमा बना नियोब्लास्ट से यहाँ पर प्लानेरिया में, और ये नियोब्लास्ट जो है फिर कन्वर्ट हो गए इस ब्लास्टेमा में रहने के दौरान into any cell type required for the regeneration. And these neoblast cells are basically pluripotent stem cells. They have the pluripotency, so they have not maximum, but it has regeneration potency. Okay, आपका प्लूरिपोटेंट जो है वो टोटीपोटेंट से सिर्फ थोड़ा सा ही तो कम है उसका पोटेंसी. These are pluripotent stem cells. Okay. पहले ये सोचा जाता था कि नियोब्लास्ट जो है वही सोलली रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए. सॉरी, नियोब्लास्ट जो है एक तरह के होते हैं, सारे नियोब्लास्ट एक तरह के, और इस ब्लास्टेमा में एक ही तरह के सारे नियोब्लास्ट हैं. And these neoblasts are adult pluripotent stem cells, but still some recent studies have shown in 2011, one study has been performed. They identified a subpopulation of neoblasts that can form large descendant cell colonies and give birth to any cell type within the body. And this subpopulation is described as clonogenic neoblast, यानी C neoblast. ठीक, C neoblast होते हैं. अगर एक सिंगल C neoblast का भी ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाए तो रीजनरेशन, अगर इस प्लानेरिया को इरेडिएट कर दिया गामा रेडिएशन दे करके, तो बहुत सारे सेल्स मर गए हैं, तो रीजनरेशन कैपेसिटी इसका लॉस हो गया, काटने के बाद रीजनरेट नहीं कर रहा है. लेकिन अगर बाहर से हम इसको इरेडिएशन देने से पहले ही इसी का सी नियोब्लास्ट हम आइसोलेट किए हुए हैं और फिर इसको इरेडिएट किए गामा रेडिएशन से, फिर कट करके हम उसी का सी नियोब्लास्ट अगर इम्प्लांट कर दिए तो दिस एनिमल विल रीग्रो. So that means this subpopulation of neoblast is essential for the regeneration. And the population of neoblast is not homogeneous, heterogeneous, because many types of neoblasts are there. One of them is C neoblast. आ रहा है समझ में स्टूडेंट? Yes, sir. ओके. सिग्मा नियोब्लास्ट भी होते हैं, उतना इस डिटेल में जाने, इतना तक भी समझ लो. ब्लास्टिमा फॉर्मेशन हो गया, नियोब्लास्ट में ना जाओ, छोड़ दो उसको. तो फिर सिग्मा नियोब्लास्ट हैं, जीटा नियोब्लास्ट होते हैं, 3 तरह के नियोब्लास्ट होते हैं. तो नियोब्लास्ट को ओमिट कर दो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो ये सीधा आप नोट बनाना कि इंजर्ड साइट पर neoblast cells, these are pluripotent stem cells, they get aggregated and form blastema, and inside blastema regeneration will start from this blastema.
Okay, inside blastema, these cineoblast cells can differentiate into any type of the cell required for the body, and the regeneration will take place. Okay, student. Yes, sir. So here, what you are saying is, which mechanism is responsible for regeneration? These pluripotent stem cells, neoblast cells, are responsible for mechanism number 1, is responsible for the regeneration. Okay, students. Yes, sir. अब देखिए दूसरा इन्वर्टिब्रेट हाइड्रा में क्या होता है। ये हाइड्रा भी जो है आपका ये निडेरिया फाइलम से बिलोंग करता है, फ्रेश वाटर में रहता है, और इस एनिमल के पास भी जैसे प्लानेरिया के पास पोलराइज बॉडी था, एक तरफ हेड है दूसरी तरफ टेल है, इसके पास भी पोलराइज बॉडी, एक तरफ हेड है दूसरी तरफ बॉटम है, डेड एंड। कोई पोर नहीं है, सिंगल माउथ है, इसी माउथ से अंदर जा रहा है पानी, भोजन, फिल्टर सब हो रहा है और इसी से बाहर भी निकल रहा है। सिंगल ओपनिंग इज फंक्शनिंग एट बोथ माउथ एंड एनस। बहुत ही प्रिमिटिव एनिमल है, इन्वर्टिब्रेट है, एनिमल हैज ए पोलराइज्ड बॉडी, और इसका जो बॉडी है इसके पास देयर आर 2 epithelial cell layers, this they have। प्लानेरिया की ही तरह हाइड्रा भी एग्जिबिट करता है एक स्ट्राइकिंग हाई रिजेनरेशन पावर। अगर इसको बीच में से हाफ अगर आप कट कर दिए तो लोअर हाफ विल डेवलप हेड एंड अपर हाफ विल डेवलप the remaining portion of the body, trunk and bottom. Understood? समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाइड्रा के पास कोई प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल नहीं है। ओके, तो आप देखिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे रिजनरेशन हो रहा है बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स। इनके पास प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल नहीं है, लेकिन इनके पास 3 स्टेम सेल का टाइप है, 3 टाइप्स ऑफ multipotent stem cells। They have hydra, इनके नाम है एक्टोडर्मल, इपिथेलियल स्टेम सेल, इसको छोटा में लिख देते हैं, एक्टोडर्मल इपिथेलियल स्टेम सेल। दूसरा है, 3 तरह के स्टेम सेल टाइप है हाइड्रा के पास। पहला एक्टोडर्मल इपिथेलियल स्टेम सेल, दूसरा एंडोडर्मल इपिथेलियल स्टेम सेल। इपिथेलियम जो है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन भी होता है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। जो आपके गट का इपिथेलियम है दैट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, और जो बॉडी सरफेस का इपिथेलियम है आउटर सरफेस, ओके, दैट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो बेसिक बॉडी प्लान ऊपर से ही सेम है इवोल्यूशनरी। यहाँ भी एक्टोडर्मल इपिथेलियल स्टेम सेल है हाइड्रा के पास, एंडोडर्मल इपिथेलियल स्टेम सेल भी है। साथ ही साथ एक इंटरस्टिशियल स्टेम सेल्स भी होते हैं। इंटरस्टिशियल स्टेम सेल पूरे बॉडी में, throughout the body, 3 types of stem cells. They are not pluripotent, but they are multipotent. आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स?
These Yes, sir. these epidermal stem cells contribute to the regeneration of epidermal layers of hydra. इसके बॉडी का बाहर का लेयर और इसके बॉडी कैविटी, जो हाइड्रा का जो कैविटी है अंदर का लाइनिंग, एक्टोडर्म से बाहर का, एंडोडर्मल इपिथेलियल स्टेम सेल से अंदर का लाइनिंग, दोनों बनेंगे किससे? फ्रॉम दिस epithelial stem cells. Two types of epithelial stem cells, ectodermal, endodermal. Okay. लेकिन इंटरस्टिशियल स्टेम सेल्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे रीजनरेशन ऑफ अदर टिश्यूज को, जैसे मीजोग्लिया, दोनों एक्टोडर्मल लेयर और एंडोडर्मल लेयर के बीच में, इनमें मीजोडर्म नहीं है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, एंडोडर्म के अंदर मीजोग्लिया है, बिकॉज दीज आर एसिलोमेट्स. तो इनके इंटरस्टिशियल स्टेम सेल्स, दे हैव multipotent potential to give rise to all other cells except epithelial cells. तो यही सेल्स अदर सेल्स में न्यूरॉन्स जो है हाइड्रा के वो भी बनेंगे इसी से. आपका निमेटोसाइट्स जो है हाइड्रा में, दैट आल्सो will be differentiated from interstitial stem cells. secretory cells भी, गैमेट्स भी, ये सब इन स्टेम सेल से बनेंगे. इसीलिए ये तीन तरह के स्टेम सेल टाइप्स जो हैं ये इस तरह से आपस में मिलके टुगेदर दे प्रोड्यूस ऑल सेल टाइप्स विद इन द हाइड्रा बॉडी. इसीलिए हाइड्रा के पास बहुत ही ज्यादा रीजनरेटिव कैपेसिटी है. डेडिकेटेड स्टेम सेल्स हैं इनके पास, तीन तरह के. ओके, इसको आप विजुलाइज कर सकते हैं कि एक्टोडर्मल लाइनिंग का स्टेम सेल है, एंडोडर्मल टिश्यूज, जर्म लेयर से जो टिश्यूज और ऑर्गन्स बनेंगे उसके भी स्टेम सेल्स हैं. चूंकि इसमें मीजोडर्म नहीं है, मीजोडर्म का फंक्शन ये इंटरस्टिशियल स्टेम सेल कर रहा है. इसी से अब चूंकि न्यूरॉन्स बन रहे हैं, न्यूरॉन्स तो बनता है एक्टोडर्म से, यहाँ पर न्यूरॉन इज कमिंग फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्टेम सेल्स. ओके, एंड द सेक्रेटरी सेल्स, गैमेट्स जो है वो मीजोडर्म से आता है. मीजोडर्म नहीं, मीजोडर्म का इक्विवेलेंट है, गैमेट यहीं से आ रहा है, बन रहा है. तो इस तरह से हाइड्रा में ये तीनों सेल टाइप मिल करके रीजनरेशन को पूरा कर देते हैं. एंड दे हैव an unprecedented regenerative capacity, both of these animals. This one because of pluripotent neoblast cells, this one pluripotent neoblast cells present in the blastema. Here these three type of stem cells which differentiate into the other cell types to meet the demand of the lost region. आया समझ में स्टूडेंट्स? आगे बढ़ें. Yes, sir. ओके, तो इनवर्टिब्रेट्स के दो एग्जांपल देख लिए, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा. अब आगे हम वर्टिब्रेट में देखते हैं इन चारों एग्जांपल में, सी, डी, ई एंड एफ. तो ये मिटाना नहीं चाहिए था, यहाँ फिर यहाँ से लाइन मारते, इसमें कौन सा मैकेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है. ओके, आप लोग रिकॉल कर लोगे, तीनों मैकेनिज्म दिमाग में बैठ गया. इन दोनों में पहला मैकेनिज्म वाज रेस्पॉन्सिबल. Yes, sir. Pluripotent. दोनों में डी डिफरेंशिएशन, ट्रांस डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है.
अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्टिब्रेट्स में डी डिफरेंशिएशन होता है। साथ ही साथ पहला मैकेनिज्म जो है जिसमें स्टेम सेल्स या प्रोजेनाइटर सेल्स गिव राइज टू द सेल्स व्हिच इज रिक्वायर्ड for the regeneration of the lost part, it will come from there also, and the cells will come from as a result of de-differentiation also. Okay, तो पहले देखते हैं एम्फीबिया में। ये दोनों तरह के एम्फीबिया हैं, एक सैलामेंडर है, एक आपका जिनोपस है, यानी फ्रॉग है, फ्रॉग से रिलेटेड है। मतलब Xenopus is not exactly the frog, but this is आपका एन्यूरन एम्फीबियन। फ्रॉग भी एक एन्यूरन एम्फीबियन है। सैलामेंडर जो है ये आपका यूरोडेलन है। ये नियोटेनी अगर पढ़े होगे, नियोटेनी, तो उसमें सैलामेंडर का जिक्र आया था। एक्सोटल लार्वा, एक्सोटल सैलामेंडर। यहाँ पर क्या देखे थे, लार्वल स्टेज के जो फीचर्स हैं वो एडल्ट में रिटेन कर लिए थे। लार्वा में जो गिल था वो एडल्ट में भी गिल मौजूद है। ये वही है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है। इन यूरोडेलन एम्फीबियंस में they do not have the capacity to generate the entire body like planarians and hydrants, but they can regrow substantial parts. Their limb regeneration is well studied and is an established model for the study of regeneration. Okay, यानी इनको एज ए मॉडल सिस्टम यानी लेबोरेटरी में इन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ओके, कट करके देखा जा रहा है, बहुत स्टडी हो रहा है। जो भी स्टडी कर रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं रीजनरेशन स्टडी में, और इसमें दे आर डूइंग द रिसर्च। सो लिम्ब रीजनरेशन जो है इसमें बहुत स्टडी हुआ है। लेकिन तो आप देखिए कि इसमें होता क्या है। व्हेन आप इसको अगर एम्प्यूट कर दिए, एम्प्यूट मतलब होता है किसी अंग को काटना, पर्टिकुलरली लिम्ब, ओके, या अपेंडेज, कोई शरीर से बाहर निकला हुआ शरीर का जो हिस्सा है उसको अगर काट दिए तो उसको एम्प्यूटेशन बोलते हैं। जैसे हाथ और पैर, तो इसके लिम्ब को अगर एम्प्यूट कर दिया जाए कहीं भी, एनीवेयर अलोंग द लिम्ब एक्सिस, लिम्ब यहाँ से कट करे, यहाँ से, बेस से, ऊपर से, कहीं भी कट करे, ओके। तो सैलामेंडर जो है कंप्लीटली रीजनरेट कर लेता है अपने मिसिंग सेगमेंट्स को, ओके। अब पता लगाया गया इसमें, इन सारे रिसर्च में, स्टडीज में, कि यहाँ पर जो लिम्ब रीजनरेशन हुआ, नया लिम्ब फॉर्मेशन हुआ, इसमें जो सेल्स आए, उन सेल्स का लिनिएज क्या है। सेल लिनिएज आप लोग पढ़े हैं, वो सेल कहाँ से आए, तब हम रीजनरेशन को समझेंगे। यहाँ पर तो सेल्स आए कहाँ से, स्टेम सेल से, इन दोनों में। यहाँ पर कहाँ से आए, सैलामेंडर में। तो स्टडी के माध्यम से देखा गया कि यहाँ पर लिम्ब टिश्यू में प्रोजेनाइटर सेल्स जो लोकलाइज्ड थे इन ईच टिश्यू, क्योंकि लिम्ब में बहुत तरह के टिश्यूज हैं। क्या क्या टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, ओके। इस तरह से अलग अलग तरह के टिश्यूज हैं, और इन टिश्यूज में अलग अलग तरह के सेल्स हैं। तो इन टिश्यूज का एक रेसिडेंट प्रोजेनाइटर सेल है, and that progenitor cell can give rise to all the cell types present in that tissue.
कनेक्टिव टिश्यू का अपना प्रोजेनाइटर सेल्स, इट विल गिव राइज टू ऑल द सेल टाइप्स प्रेजेंट इन दिस टिश्यू। ओके, तो इस तरह से हर टिश्यू के अपने प्रोजेनाइटर सेल्स हैं जो कि पहले से हैं, उनके बने हुए लिम्ब में पहले से ही थे। जब कट हुआ लिम्ब तो वो प्रोजेनाइटर सेल्स जो हैं अपने अपने कोरेस्पॉन्डिंग टिश्यू से निकल करके लोकलाइज होते हैं इस रीजन में जहां पर कट हुआ, एंड दे माइग्रेट हियर। ये तो कट हो गया, ये पार्ट तो लॉस हो गया, यहां से तो आएगा नहीं, यहां से आया कट पार्ट से, एंड दे माइग्रेट टू दिस रीजन एंड दे फॉर्म ब्लास्टेमा। अगेन ब्लास्टेमा सेम टर्म है, यहां भी आया था ब्लास्टेमा। हियर द ब्लास्टेमा इज आपका consisting of the cell types which are progenitors to these different tissues. सब टिश्यू के अपने अपने प्रोजेनाइटर सेल्स ब्लास्टेमा को फॉर्म कर लिए, और जहां पर लिम्ब कट हुआ था उस रीजन में, उस एपाइकल एंड में जमा हो गए। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? Yes, sir. Yes, sir. इस ब्लास्टेमा में आपको थर्ड मैकेनिज्म नहीं मिलेगा, ट्रांस डिफरेंशिएशन इज नॉट हैपनिंग हियर, बट द फर्स्ट मैकेनिज्म प्रोजेनाइटर सेल्स तो आ रहे हैं, दोज आर द स्टेम सेल्स, दैट इज हैपनिंग, एंड द सेकेंड मैकेनिज्म डी डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो हैपनिंग। हाउ? लेट अस सी। क्योंकि स्टडीज के माध्यम से पाया गया कि ब्लास्टेमा यहाँ पर जो है वो एक हेट्रोजीनस पूल है, कई तरह के सेल्स हैं, डिस्टिंक्ट लीनिएज रेस्ट्रिक्टेड प्रोजेनाइटर सेल्स है। लीनिएज रेस्ट्रिक्टेड प्रोजेनाइटर सेल्स, ऑल दीज आर लीनिएज रेस्ट्रिक्टेड प्रोजेनाइटर सेल्स। ओके, जो एपिडर्मल टिश्यूज के प्रोजेनाइटर सेल्स है दे आर लीनिएज रिस्ट्रिक्टेड, वो एपिडर्मल सेल्स को ही सिर्फ डिफरेंशिएट करके बनाएंगे। They are lineage restricted progenitor cells. So the blastema here is the heterogeneous pool of these distinct lineage restricted progenitor cells. कहां से आए ये lineage restricted progenitor cells? From its original limb tissue, जो बचा हुआ है बॉडी से जुड़ा हुआ है, जो उसके साथ कंटिन्यूएशन में है। ओके, तो सवाल उठता है क्या यही lineage restricted progenitor cells responsible हैं जिससे सारे जो सेल्स नए सेल्स ऐड होंगे इस रीजनरेटिंग लिम्ब में, वो सारे सेल्स क्या इन्हीं प्रोजेनाइटर सेल्स से आएंगे? द आंसर इज नो, बोथ मैकेनिज्म्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे बोथ add their significant contribution to meet this demand of new cells. तो आप देखेंगे यहां, 1 सेकेंड, तो कहने का मतलब हुआ कि यहां पर लीनिएज रेस्ट्रिक्टेड प्रोजेनाइटर सेल्स जो है वो आते हैं, उनका भी एक सोर्स है, वो आते हैं डी डिफरेंशिएशन से। ओके, कुछ लीनिएज रेस्ट्रिक्टेड प्रोजेनाइटर सेल्स आए पहले से ही मौजूद उनके ओरिजिनल लिम्ब टिश्यू से, और फिर लीनिएज रेस्ट्रिक्टेड प्रोजेनाइटर सेल्स जो अराइव हुए और ज्यादा बने डी डिफरेंशिएशन प्रोसीजर के द्वारा। अब जो यहां पर टिश्यू इंजर्ड था, यहां पर इसमें आपके एक्टोडर्मल एपिथेलियल सेल्स भी थे,
एंडोडर्मल इपिथेलियल सेल्स भी थे, सब तरह के सेल्स थे, मसल सेल्स थे, अदर तरह के सेल्स थे, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं। ओके, तो इन सब जो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स विच आर प्रेजेंट इन दिस रीजन, they de-differentiate and they form their respective progenitor cells, and those progenitor cells are lineage restricted, and those progenitor cells will again differentiate into those cells. ओके, इससे क्या फायदा मिला कि बहुत ज्यादा सेल्स बन गए फिर प्रोजेनाइटर सेल्स, क्योंकि लिम्ब प्रोजेनाइटर सेल्स पहले से ही ओरिजिनल टिश्यू में कम मात्रा में थे, पूरा का पूरा लिम्ब बनाना है, तो लिम्ब के जहां पर इंजुरी हुई वहां पर जो अलग अलग तरह के सेल्स थे उनका डी डिफरेंशिएशन हुआ और वो अपने अपने रेस्पेक्टिव प्रोजेनाइटर सेल्स में तब्दील हुए, और वो प्रोजेनाइटर सेल्स भी आए जो डी डिफरेंशिएशन प्रक्रिया से बने हैं, और वो प्रोजेनाइटर सेल्स भी आए जो जस्ट माइग्रेशन से यहाँ आए। दोनों तरह के सेल्स यहाँ आए इस ब्लास्टेमा में, और ये ब्लास्टेमा जो है, अब यहाँ पर एक पॉपुलेशन दिख रहा है प्रोजेनाइटर सेल्स का, लेकिन इस पॉपुलेशन में भी दो सब पॉपुलेशंस हैं। एक पॉपुलेशन जो है जो डी डिफरेंशिएशन से आया, और एक सब पॉपुलेशन जो है जो कि माइग्रेशन से आया फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लिम्फ टिश्यू से। एंड both mechanisms are implicated here in blastema formation, and both mechanisms are responsible for the limb regeneration. आ रहा है स्टूडेंट समझ में यहाँ आपको? यस सर। तो सैलामेंडर में, एम्फीबिया में इसने सहारा लिया डी डिफरेंशिएशन का भी। आप कहोगे यहाँ पर क्यों नहीं सहारा लिया डी डिफरेंशिएशन का? यहाँ भी ले सकता था, इनको जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? इनका एक तो बॉडी छोटा है, सेल नंबर कम है, प्लस सोने पर सुहागा कि प्लानेरिया का बॉडी में लगभग 1/4 सेल्स जो है वो क्या है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। इतने ज्यादा सेल्स हैं इसके पास पहले से, वही काफी हैं इसके बॉडी को रीजनरेट कराने के लिए। हाइड्रा के पास 3 अलग अलग तरह के स्टेम सेल्स थे, एंड वो भी बहुत मात्रा में है, तो इसको भी जरूरत नहीं पड़ी डी डिफरेंशिएशन की। लेकिन एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एनिमल गोज हायर साइड, the requirement of keeping these stem cells in a large amount, it reduces. क्योंकि specialized structures, complex structures, okay, more differentiated cells are present and they are added. तो इसके कॉस्ट पर उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि आपका स्टेम सेल पॉपुलेशन को घटाना पड़ा, कम हो गए स्टेम सेल पॉपुलेशन। तो वो स्टेम सेल पॉपुलेशन सफिशिएंट नहीं है कि इसके लिम्ब को पूरा का पूरा ग्रो करा दें अकेले दम पर, खुद से खुद पूरा डिवाइड करके जल्दी से जल्दी बना दें। सो this animal takes the help of second mechanism, that is de-differentiation. Already differentiated cells, they are de-differentiating, they are getting reprogrammed, and they are converting back into their respective progenitor cells temporarily. And then again, because progenitor cells will gain the capacity of cell division, and those progenitor cells will divide rapidly, and then after a certain number of division, if the cellular demands is met, then the division will stop, and all those daughter progenitor cells will differentiate into their respective lineage cell, and the limb formation will occur.
ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? कोई डाउट इन Urodelon amphibians like salamander? It utilizes these two mechanisms. Okay students, आगे बढ़ें. Yes, sir. एन्यूरल एम्फीबियंस में क्या होता है? जिनोपस, इसके टेल को अगर कट कर दिया जाए तो टेल विल रीग्रो. टेल इज नॉट ए लिम्ब, ठीक है, लिम्ब नहीं है ये, बट अपेंडेज तो है. लेकिन तो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि टैडपोल है, इसमें नोटोकॉर्ड भी है, तो इट मीन्स यू हैव कट द नोटोकॉर्ड ऑल्सो if you are cutting the tail. But this animal can regenerate its tail from the larval life only. After amputation, this injured tail regrows and its lost part from the tail regeneration after this chopping of this tail regeneration bud takes place, and that injured tail regrows its lost part from this regeneration bud. You have cut the tail, then this is the regeneration bud, and then you are getting a full developed tail again, regenerated tail again. अब यहां क्या हो रहा है? टेल रिजेनरेशन बर्ड यहां पर, it does not have this similarity with the limb blastema as we have seen in this salamander, because it includes notochord also. So in this regenerating tail bud, there is one more small bird, that is notochord bird. I'm not going into the deep detail. Okay, नोटोकॉर्ड बर्ड है, न्यूरल एम्पुला है, और साथ ही साथ ब्लास्टेमा भी है यहाँ पर. यानी कहने का मतलब एक बड़ा बर्ड है, रिजेनरेटिंग टेल बर्ड. इस रिजेनरेटिंग टेल बर्ड में नोटोकॉर्ड बर्ड है, न्यूरल एम्पुला है एंड ब्लास्टेमा है. अब इस रीजनरेशन बर्ड में सेल्स कहां से आए, यहां पर हम देखें कैसे आए, अब यहां भी देखिए कैसे आए, कहां से आए. तो इन सेल लिनिएज एनालिसिस जो है, स्टडीज हैव शोन दैट lineage